I charge 1 lakh rupees, 1 lakh rupees plus taxes. Telugu film industry mein, whether it's Mahesh Babu, Mr. Prabhas, Mr. Allu Arjun, Mr. Ram Charan, Mr. NTR, Mr. Chiranjeevi sir. So relationship is very strong. Whether it's Rana Dagupati, Charan sir. హాయ్. సో ఈ రోజు మనతో స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారండి. ఆయనే ఆలిం హకీం గారు. సో ఈయన వచ్చేసి మనకి టాలీవుడ్లో పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్కి అండ్ అలాగే టాలీవుడ్లో బాలీవుడ్లో పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్కి అందరికీ కూడా ఈయన హెయిర్ స్టైలిస్ట్ అనమాట. అండ్ ఈయన పేరు మనం తరచుగా వినే ఉంటాము. ఈరోజు మనతో ఆయన ఉన్నారు. ఈరోజు మనం ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాం. నేనైతే చాలా చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాను. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. హాయ్ సార్. Hi, how are you? Yeah, I'm good, sir. How about you, sir? Good, 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 very good. Yeah. We are very happy to welcoming you, sir. And Thank you thanks for so much. joining us. Thank you so much. Yeah. So, before I want to ask you one question. I saw your Instagram, sir. So, you have 14 million plus followers. Comparatively, celebrities, you have more followers. So, This followers also, they like to follow creative people, and I do for a lot of cricketers, film actors, and so, people from different walks of world. So they like to see transformation videos. They like to see transformation. So if you see internationally also, you'll always see hairdressers and people who do transformations. They have many followers because people like to see real craft, people who change you know looks of the celebrities, and also common people who are not who are not into film industry or fashion world. But transformation is uh, always works for the social media. yes, nice, sir. And how long time it take to reach 14 million followers, sir? When you start your Instagram? Oh, 2013. It's been more than a decade. Yeah, yeah, yeah. I joined Instagram. Yeah. Very short time actually. Yeah, क्योंकि no, but 14 but but 14,000 also का. I keep posting a lot of stuff. It's an organic stuff. What I post about my work. I post about my family. I post about my personal taste, likes and dislikes, everything. So people like to get connected when things are more organic and it's more real. सोशल मीडिया में आप बहुत एक्टिव दिख रहे हैं. हाँ हाँ, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया में क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, और मेरा इंटरेक्शन भी लोगों के साथ, जो फिल्म एक्टर्स है, क्रिकेटर्स है, सब लोग के साथ काफी रियल होता है, तो लोगों को अच्छा लगता है ये सब. And people are very interesting to know about you, sir. और दिख रहे हैं क्योंकि कमेंट्स भी देख रही हूँ मैं. बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं. वो साउथ में एक्चुअली कल्चर भी है. पीपल लाइक टू फॉलो, दे हैव देयर फैन क्लब्स. सब एक्टर का एक फैन क्लब होता है, वैसे ही वो सब एक्टर लोग का कपड़ा कौन करता है, बाल कौन करता है, तो ऑब्वियसली बाल में सब एक्टर का करता है. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, वेदर इट्स महेश बाबू, मिस्टर प्रभास, मिस्टर अल्लू अर्जुन, मिस्टर रामचरण, मिस्टर NTR, मिस्टर चिरंजीवी सर, you name each and every actor, each and every movie I style, and so I think so उसकी वजह से भी, क्योंकि लोगों को सुनना होता है कि कौन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी लोगों को अच्छा लगता है. बट आई ऑल्सो मेंटेन एवरीथिंग. आई डोंट लीक आउट स्टफ. आई ओनली पोस्ट स्टफ्स which are required. तो मैं बहुत चीजों को कॉन्फिडेंशियल भी रखता हूँ. जब तक पिक्चर रिलीज नहीं होती किसी से डिस्कस नहीं करता हूँ, कुछ बात नहीं करता हूँ. तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए लोग, इतना सारा लोग मेरे साथ काम भी करते हैं. Sir, and how you started your journey as a hairstylist? मैं बहुत यंग एज में शुरू किया था, 16 की एज में. माय फादर यूज्ड टू बी अ हेयर ड्रेसर, बट वो जब उनका डेथ हो गया, आई वाज 9 ईयर ओल्ड. माय फादर वाज अमिताभ बच्चन हेयर स्टाइलिस्ट. ही वाज द वन हु क्रिएटेड the looks of Dawn, Diwar, Zanjeer, Sholay, and all the films of Amitabh Bachchan. And also he used to do each and every actor. जैसे मैं सबका करता है, my father also used to do for
everyone from Dilip Kumar to Shatrughan Sinha to Vinod Khanna to Amitabh Bachchan. He also did for Bruce Lee and Muhammad Ali, the boxer. So वो बहुत फेमस है ड्रेसर थे, बट वो उनका डेथ बहुत जल्दी एज में हो गया. ही वॉज 39 और आई वॉज 9 ईयर ओल्ड दैट टाइम. सो स्ट्रगल काफी, तो हाँ, तो स्ट्रगल काफी हुआ मैम. एंड फिर करते करते 16 की एज में मैंने प्रैक्टिस शुरू किया. फिर लॉरियल ने मेरे को स्पॉन्सर किया. उसमें एक बिनायफर पर्दी वाला थी, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड टू लर्न हेयर ड्रेसिंग फ्रॉम ऑल द बिग हेयर ड्रेसर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. So, and I keep doing that. I keep updating myself. I keep going for all this education and seminars. And that has benefited me to become a stronger hairdresser. Because एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता. आपका एजुकेशन कितना है, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज द की. सो आई फर्मली बिलीव इन दैट. एंड दैट हैज रियली हेल्प मी टू बिकम ए स्ट्रॉन्गर hairdresser. तो या तो प्रैक्टिस अभी भी होता है. एजुकेशन अभी अभी भी मैं सबसे सीखता हूँ. जो बल्कि मेरे से जो छोटे बहुत एज के हैं, जो न्यू है ड्रेसर्स है, मैं उनसे भी सीखता हूँ. मैं अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो देर इज नो हार्म इन लर्निंग फ्रॉम एनी न्यू कमर. So it's not about it's about technique. It's about learning all this smart techniques. So I don't keep any ego, anything in myself as an artist. So I always keep my ears and eyes open. 16 ईयर्स के आपको करियर स्टार्ट हो गया एज एन हेयर स्टाइलिस्ट. अब पढ़ाई क्या किया? मैं SY BCom तक पढ़ाई किया है. मीठी बाई कॉलेज में मैं था, तो मेरे मीठी बाई कॉलेज में भी बहुत सारे एक्टर्स लोग मेरे साथ में जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो लोग एक्टर्स बन गए. कोई कोरियोग्राफ, जैसे विवेक ओबरॉय और मैं एक ही बैच में थे. श्रेयस तलपड़े, फिर बॉस्को मार्टिस, बॉस्को सीजर जो बहुत फेमस कोरियोग्राफर हैं, जो डांस डायरेक्टर हैं. बॉस्को और मैं क्लासमेट्स थे. तो साजिद वाजिद म्यूजिक डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में चले गए. तो हम लोग एक साथ कॉलेज में थे. लेकिन मैं हेयर ड्रेसर बन गया, बाकी सब लोग मूवी में अलग अलग डिपार्टमेंट चले गए. बट आई बिकेम हेयर स्टाइलिस्ट इन. बहुत छोटा था. 16 साल से 16 के साल में आपको ये स्टार्ट किया पूरा. यस, यस. काफी छोटा क्योंकि जितना यंग एज में करते हो तो उतना एक्सपीरियंस आपका आपका गलती से आप सुधरते हो क्या, आपका टेस्ट चेंज होता है. टेस्ट प्यूरिफाइड भी होता है. पहले आप बहुत टैकी काम करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका टेस्ट इंप्रूव होता है. हर चीज में कि आप अपने आप को कैसे प्यूरिफाइड कर सकते हो और कैसे बेटर हो सकते हो. तो वैसा मैं अपने आप को बेटर करते गया. अच्छा, आप ये 16 ईयर्स को स्टार्ट किया ना सर, जब आपको ये प्रोफेशन ये पसंद है आपको? पसंद है क्योंकि मैं ब्लड में है मेरे ये हेयर ड्रेसिंग. तो माय फादर वाज सच ए बिग हेयर ड्रेसर. बट मैं जब कॉलेज गया तो मेरे को एक्टर बनने का था. तो ऐसा नहीं था कि मेरे को हाँ हाँ हेयर ड्रेसर बनने का था. आई वांटेड टू बी एन एक्टर. सो मैं बहुत थिएटर करता था. थिएटर करते करते मैं प्रैक्टिस भी करता था बाल काटने का. आप जब कितने साल थे कितने साल थे जब? 16 साल का ही था जब थिएटर करता. थिएटर भी करता था, बाल भी काटता था. तुमको डैडी का लेगेसी आगे लेके जाने का है, क्योंकि डैडी घर पे नहीं, मर गया. तो तुमको यही काम डैडी का फेमस करने का है. तो डैडी का सलोन का नाम हकीम्स था, तो मैंने उसके बाद में आलिम डाल दिया. तो इसलिए ब्रांड नेम हकीम जालिम हो गया. तो ऐसा ऐसा हो गया. और बाद में जब हकीम जालिम हो गया तो फिर वो ब्रांड नेम बहुत फेमस हो गया. और टचवुड की सब सिटीज में है, एक्सपेंशन हो गया. बॉम्बे में है, पूना में है, रायपुर, सूरत, अभी हैदराबाद में भी खुला है. तो ऐसे करके एक्सपैंड होके बहुत स्ट्रांग नाम हो गया इंडस्ट्री के अंदर. पूरा अभी तक कितने ब्रांचेस है सर आपको? एक 7 ब्रांचेस है? मोर देन 10 ब्रांचेस है अभी, और सब सिटीज में है. हाँ, बहुत सिटीज में है. हाँ. और अभी और एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन स्लोली स्लोली, क्योंकि हम लोग क्वालिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं क्वांटिटी से ज्यादा. क्योंकि इट्स ए वेरी पैशनेट जॉब. तो हम लोग ऐसा नहीं है कि इतना सारा खोले लेकिन क्वालिटी में सफर करे. तो सो वी रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वालिटी. सेलिब्रिटीज के साथ वर्क करते हैं सर, आप देखने के लिए एक्टर जैसे दिख रहे. कोई भी नहीं पूछे आपको आप आपका मूवी में एक्ट कर सकते, आपका मूवी में ऑफर है, आप एक्ट करना बोले कि कोई भी नहीं पूछे आपको? पूछते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन मेरे को नहीं करने का, क्योंकि आपको पसंद है ना सर? नहीं, मेरे को पसंद है एक्टिंग. ऐसा नहीं, मैं किया हाँ. हूँ. मैंने थोड़ा बहुत पिक्चर में एक्टिंग किया है. जैसे रोहित शेट्टी का पिक्चर में किया है, सर्कस में किया है मैंने. फिर गोलमाल में किया है. ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा फ्रेंड्स लोग के लिए किया है मैंने. ऐसा नहीं कि नहीं किया है. बट
I like to be a hairdresser. I like my job और hairdressing करने ज्यादा मजा आता है मेरे को. सर अब तक बहुत सारी को सेलिब्रिटी के साथ वर्क किया आप. ऑल 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 टाइम फेवरेट, ये मेरा काम, ये मेरा फेवरेट है, वैसे बोले तो क्या बोलते हैं आप? सभी मेरा फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं इतना काम करता है, मतलब मेरा जी सब हर हफ्ते जो मूवी रिलीज होता है सब में काम किया. अभी जैसे ये हफ्ते भी रिलीज हुआ, कुली रिलीज हुआ, उसमें रजनी सर का हेयर स्टाइल और नागार्जुन सर का हेयर स्टाइल मैंने डिजाइन किया. वॉर जो रिलीज हुआ, वॉर टू, उसमें ऋतिक रोशन सर और जूनियर एनटीआर सर का भी हेयर स्टाइल मैंने स्टाइल किया. तो सैयारा इसके पहले रिलीज हुआ, उसमें आन पांडे का स्टाइल भी मैंने स्टाइल किया. तो जो भी मूवी रिलीज होता है तो मोस्टली सबका पिक्चर में ही, मतलब 90% ऑफ इंडियन फिल्म्स सब में मैं ही करता है. तो इसलिए ऐसा कोई फेवरेट नहीं है. मतलब मेरा मैं ऐसा है कि जो काम मैं किया उसको भूल जाता है नेक्स्ट डे. तो ऐसे आई डोंट लाइक टू चेरिश कि अरे ये बहुत अच्छा काम है या ये फेवरेट है. You do your job, you forget your job, and then go to the next. So that's how you keep recreating things and you keep building more better stuff. Because if you get obsessed by your own work and you think that you have done an amazing work, then it doesn't work. Like I have done so many movies in South where people have really liked, where there's Jailer, Bahubali, so many movies, Triple R. But you can't be obsessed by your own work, what you have done. You have, do it when it's released, close chapter, the next. So that's how I function. अब जो मूवीज को वर्क किया वो मूवीज पूरा सुपर हिट हुआ. आप बोल रहे हैं इससे पहले. हाँ, सैयारा. और सब मूवी सुपर हिट होता है और कुछ कुछ नहीं भी चलता है. ऐसा नहीं कि सब चलता है, बट माई जॉब इज टू डू माई बेस्ट एंड टू वर्क बेस्ट. बाकी तो सब फिल्म मेकिंग इज एन एमैलगेशन ऑफ डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन, सब मिलके एक पिक्चर बनाता है. कभी चलता है, कभी नहीं चलता है. तो समटाइम इट्स नॉट लाइक ऑलवेज a good thing. Sometimes I have done good work but people have not seen those films. तो ऐसा नहीं है कि सब पिक्चर चलता है, कुछ कुछ पिक्चर नहीं भी चलता है. अभी काल्की में भी प्रभास का हेयर स्टाइल लोगों को अच्छा लगा था, डिफरेंट था. प्रभास सर का अलग लग रहा था उसके अंदर काल्की के. में हाँ. या आप बाहुबली की भी आपको वर्क किया ना सर, प्रभास के? पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी दोनों. अच्छा, ओके ओके. सर, if is there any requirement for movie, who will approach you first? Like डायरेक्टर अप्रोच होते हैं और प्रोड्यूसर अप्रोच होते हैं, नहीं तो हीरो अप्रोच होते हैं, कौन अप्रोच होते हैं आपको फर्स्ट? सब लोग, डायरेक्टर एंड एक्टर बोथ. So movie actors also, they feel very comfortable with certain technicians to work with. So obviously first of all वो actor का choice होता है कि with whom they are comfortable. So I think so, as I said earlier, they're very comfortable with me because I keep everything too confidential. I don't leak out things. I don't discuss what we are doing. तो ये बहुत sensitive भी होता है पे film making, because when one technician is working with so many people, कुछ ना कुछ लीक हो सकता है, कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकता है. So I keep things very intact. क्योंकि और मेरे लिए चैलेंजिंग ये भी होता है कि सबको अलग दिखाने का है. Nobody should look similar because if one technician is working, there might be a possibility of things looking similar because technician तो same ही है, उसका taste कहीं ना कहीं तो same रहेगा. So for me also it becomes challenging that how to make all these people look different. So that is challenging. ओके ओके. अभी तक आपको टफ चैलेंज क्या किया सर? टफ चैलेंज अभी ये मूवी आया था एनिमल, उसमें रणबीर कपूर का इतना सारा लुक था, उसमें मजा आया. संदीप रेड्डी वांगा सर का एनिमल. संदीप रेड्डी वांगा सर के काम करने में बहुत अच्छा लगता है. बॉबी देओल और दोनों का लुक मैंने किया था. रणबीर कपूर का अच्छा हुआ. वैसे कबीर सिंह में भी उनका संदीप रेड्डी वांगा सर का था. तो उसमें चैलेंजिंग रहता है क्योंकि दे वांट ही वांट कैरेक्टर टू लुक रियल ऑल्सो एंड ऑल्सो सिनेमैटिक. तो रियल एंड सिनेमैटिक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए और रियल भी लगना चाहिए. तो दैट इज अ वेरी दिस थिंग. छावा में भी जो विक्की कौशल का हेयर स्टाइल था छावा मूवी में, इवन दैट वाज चैलेंजिंग क्योंकि बहुत सारा लुक्स था और वो भी लोग बहुत अच्छा लगा. तो छावा में भी अच्छा चैलेंजिंग था. संजू मूवी में भी बहुत चैलेंजिंग था जिसमें रणबीर कपूर का इतना सारा डिफरेंट हेयर स्टाइल्स था एंड ही वाज प्लेइंग संजय दत्त. सो वो करने में भी बहुत मजा आया था. तो ऐसा बहुत सारा फिल्म है, मैं नाम ले लेके थक जाएगा जिसमें मैंने काम किया है. तो बहुत चैलेंजिंग रहा है और लोगों को अच्छा लगा है वो सब.
Sir, how many transformation you did for animal, sir, for Ranveer? There were 6 looks. 6 looks. Yeah, there was long hair, short hair, then when he's in school. Then there is also Aziz ka look when in the climax he comes with short hair. Yes. So there are many looks. How much time it will take to do one hairstyle? It's time because to execute it doesn't take time. वो 1 घंटा 2 घंटा है. But to think, to have meetings, to process things, that is that takes a lot of time because आपको मीटिंग करना पड़ता है, फिर डिस्कशन करना पड़ता है. Then you have to speak to the actor, director कि क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा, and then it happens. अच्छा, ओके। ऐसा होता है. Yeah. कोई भी पर्टिकुलर लेता अरे था क्योंकि मुझे वैसे रखो, नहीं तो मुझे वैसे होना, वैसे बोल को कोई भी बोलते हेयर कटिंग वैसे रहना, नहीं तो दाढ़ी वैसे रहना। आज की तारीख में पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, ये कि टेक्निकली और सिनेमैटिकली बहुत डिफरेंट रहता है. अ, हर चीज सिनेमा के हिसाब से होता है. तो टेक्निक इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर वर्किंग फॉर सिनेमा. सिनेमैटिकली क्या अच्छा लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है. तो एक्टर को ये समझ में आता है, तो वो बोलता नहीं कि पर्टिकुलर है, वो बोलेगा सिनेमैटिकली क्या अच्छा लग रहा है वो करो, और नया लगना चाहिए ऑडियंस के लिए. इफ यू आर नॉट लुकिंग न्यू, नोबडी विल वॉच योर फिल्म, or you know your look will not be impressive because if there is nothing new in it. So that is important. Okay. आप इतने सारे मूवीज को वर्क किया ना सर, वो मूवीज आप देखते? मैं अपना काम जरूर देखता है क्योंकि देखना बहुत जरूरी है, और फिर आपको रियलाइज भी करना चाहिए किधर काम अच्छा है, किधर रॉन्ग हो गया, किधर वो हो गया. तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना काम देखना. अगर आप अपना ही काम नहीं देख रहे तो फिर आप उसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे, फिर कर नहीं पाओगे. कूली कूली मूवी देखा आप? कूली मूवी अभी तक नहीं देख पाया. कूली मूवी देखेगा मैं, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर रहा था. आई वाज ट्रैवलिंग. मैं वॉर 2 देखा, कूली देखेगा अभी. कैसा लगा सर आपको वॉर वॉर 2? और अच्छा पिक्चर है, अच्छा पिक्चर है, टाइम पास है. हाँ, टाइम पास है, एक्शन है, सब अच्छा टाइम पास. उधर ऑडियंस कैसे रिसीव कर रहा मूवी को? अच्छा कर रहा है. सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को अलग लग रहा है, तो मतलब अच्छा है. आपको वर्क में आपको क्या मोटिवेशन क्या देते सर आपको? मिशन मेरे को, आई लाइक सिनेमा. सिनेमा आई एम ऑब्सेस्ड बाय सिनेमा. सो मूवी मेकिंग ही मेरा मोटिवेशन है. लाइक आई एंजॉय दिस बिग कैनवस, एंड जब कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ा लुक हो रहा है, तो आई एंजॉय ऑल दैट. एज एन हेयर स्टाइलिस्ट आपका डे कैसे स्टार्ट होता? इफ यू हैव एनी टाइट स्केड्यूल, हाउ यू विल मैनेज ऑल दोस? सुबह सुबह जब उठता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है, कॉफी पीता है, फिर घर से निकलता है, फिर सीधा सैलून जाता है. अगर सैलून में शूट है, शूट पे अगर कोई एड्स है या कोई मूवी का लुक डिजाइन हो रहा है, तो उधर जाता है. बट रोज काम पे जाता है. मैं घर पे नहीं रहता, छुट्टी नहीं लेता है कोई. सो दैट वे आई एम अ वेरी फैमिली मैन. लाइक मैं कभी लाइफ में दारू नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया. तो आप सर सीरियसली? या सीरियसली दिखने में ऐसा लगता है बड़ा बॉडी पर्सनालिटी से कि टैटू वैटू सब करता है, लेकिन कभी मैंने टच नहीं किया है सिगरेट और दारू. सो दैट वे ऑल्सो रियली हेल्प्स मी, उससे मैं ज्यादा फोकस रहता है. नहीं सर, एंड అంటే क्यों अभी तक मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, मतलब वो एडिक्शन नहीं है मगर वो एंजॉय करते, कभी दारू पीना, कभी स्मोक करना। हाँ, कोई भी करता है हाँ, फिल्म इंडस्ट्री. करते, मगर आपको आपको क्यों ऐसा? क्योंकि आपको कुछ बैड स्टोरीज वगैरह कुछ है? So I've never tasted only, so I never tasted. So खाली कॉफी पीता है मैं, ब्लैक कॉफी. ये जो बाकी मैंने ऐसा कभी कुछ टेस्ट नहीं किया है कि सिगरेट या दारू, तो इसलिए कभी कुछ मालूम ही नहीं है कि कैसा क्या है. मैं वही पूछ रही हूँ, कुछ आपको बैड स्टोरीज वैसे कुछ है क्या बोल के बोल रही हूँ? एक्चुअली थोड़ा है. माय फादर यूज्ड टू ड्रिंक एंड ही डाइड वेरी अर्ली बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग. सो वो एक थोड़ा बैक स्टोरी है. माय मॉम आल्सो यूज्ड टू स्मोक एंड शी गॉट हार्ट अटैक एट अर्ली स्टेज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. So maybe I want, and then then your body doesn't support you, when you suffer all these things. So maybe I'm too focused on my craft, and I'm too obsessed by my craft. So that could be all this. So this is a part of my exercise, that ये करने का है और ऐसा रहने का है, तो focus रहेगा.
ओके, ओके। एंड इफ कुछ टाइट स्केड्यूल रहे तो लाइक बैक टू बैक यू नीड टू वर्क, सो हाउ यू हैंडल ऑल दोस? वर्किंग बैक टू बैक करते आई प्लान माई वर्क, सो आई टेक माई वर्क एज पर शेड्यूल। सो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं आता मेरे को कि अभी इसके बाद दूसरा कुछ काम है जल्दी। तो एवरीबडी, इवन द एक्टर्स वेट फॉर देयर यू नो डेट एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माई डेट। सो ऐसा कुछ है नहीं। गूगल में इंडिया पॉपुलर हेयर स्टाइलिस्ट कौन है बोल के पूछे तो आपका नाम आया सर। मेरा कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी नहीं है, मेरा कोई पीआर भी नहीं है, ना मेरा ऐसा कुछ है। तो ये नेचुरल है, जैसे बोलो ना, हर चीज ऑर्गेनिक है। अगर ये आया है तो मतलब गूगल पे तो अपना आप नेचुरली आया होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये आ, कि मैंने कुछ किया है, ये मतलब लोग सर्च करते होंगे इसलिए आया होगा। इट वाज सो नाइस सर। एंड आप फर्स्ट टाइम कौन सा सेलिब्रिटी के साथ वर्क किए? फर्स्ट स्टाइलिस्ट किसको किए? टाइम आई कांट रिकलेक्ट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और मैंने मनोज बाजपेयी, चंद्रचूड़ सिंह, जैसे विवेक ओबरॉय मेरा पहला सेलिब्रिटी क्लाइंट था। फिर इनिशियली ये सब आते थे, सलमान खान, अजय देवगन, और ये अभी तक आते हैं, सब सब क्लाइंट ही है मेरे। संजय दत्त, सलमान खान, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, दे ऑल आर स्टिल आर क्लाइंट। सो ये पहले से आते हैं और अभी तक आते हैं। लाइक सेलिब्रिटीज कैसे रहते कैसे रहते सर आपके साथ? बहुत अच्छे रहते हैं सब, फैमिली के जैसे ही रहते हैं सब, बहुत अच्छे रहते हैं सब। दे ऑल लाइक फैमिली ओनली है। Particularly, you want to tell anything about anyone? I will ask you few names. All are fun guys. Abhishek Bachchan, Amit ji, they're all nice human beings, fun guys. Prabhas sir, I like Prabhas very much because everyone in Hyderabad are so sweet. They love food, and whenever I go to their house, they feed me like anything. They will get biryanis of different kind of biryanis. Different kind of sweets, and then delight this some delight sweets, and some pan, some biryani, some. So they love to feed me. में कभी भी कोई भी जाए तो बहुत सारे फूड रहते बोल के बोलते बाहर। हाँ। आज सर के घर में तो बहुत फूड रहते हैं, क्योंकि वो इतना likes to host people. But everyone is like that. But some people are, they love to feed. So Charan sir is also very sweet. NTR sir is also very sweet. Charan sir also loves food. Tarak sir also makes lovely food. So they all are very sweet. आप तारक सर घर को गए सर? बहुत बार, बहुत बार, सबके सबके घर पे जाता हूँ। Everybody's house, yeah. So they're all friends only, and see, it's not that they're clients. They're like friends. They're like brothers to me. So relationship is very strong. Whether it's Rana Daggubati, Charan sir, Allu Arjun sir, NTR sir, Mahesh Babu sir, Prabhas sir, they're all friends. It's like family. Yeah. तो रिसेंटली आप रामचरण सर को भी हेयर स्टाइल किया ना सर, पेद्दी मूवी के लिए? पैदी के लिए। या सो वो मूवी के लिए फर्स्ट आपको कौन हुआ सर? खुद भी अप्रोच किए, फिर डायरेक्टर भी अप्रोच किए, तो पूरा, जैसे मैंने बोला, पूरा टीम, बुच्ची बाबू सर। सो पूरा टीम अप्रोच करता है, देन वी हैव सिटिंग्स एंड देन वी लॉक द लुक्स, ऐसा होता है। अच्छा, ओके, ओके। रामचरण सर पेद्दी मूवी के बारे में कुछ बात की है आपसे? किया, लेकिन मैं जैसे बोला कुछ डिस्कस नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस, जब तक पिक्चर रिलीज नहीं हुआ आई कांट डिस्कस। ऑब्वियसली बात की है, कैरेक्टर, पिक्चर भी शुरू हो गया है, पिक्चर काफी कंप्लीट हो गया है, अभी कुछ लुक्स बाकी है, बस वही है। तो सब इंटरेस्टिंग, जिन्होंने पहला टीजर देखा है सबको बहुत अच्छा लगा है लुक। सॉन्ग भी पेडी का फर्स्ट शॉट हिट हो गया है, टीजर में जो आता है। अब तक फर्स्ट लुक ऑल्सो वेंट वायरल, सो तो दैट वे इट रियली वर्कड। ओके, ओके। एंड सर आप यंग जनरेशन के लिए आपका जैसा हेयर स्टाइल बनने वालों को आप क्या क्या कुछ एडवाइस देने बोले तो क्या एडवाइस देते सर? मेरा सब यंग जनरेशन के लिए यही है जो हेयर ड्रेसिंग में आना चाहते हैं, कि स्टे फोकस एंड बी अ लर्नर एंड बी अ गुड लिसनर।
क्योंकि अगर आप कुछ सीखेगा नहीं और सीखने का एटीट्यूड नहीं रखेगा तो आप कभी सक्सेसफुल हेडरेसर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम्बल रहना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी हम्बल all your life, and that's all. And be focused and be creative all the time, and always think out of the box. ओके। एंड आपको इधर सैलून है ना सर हैदराबाद में? जी, है ना, जुबली हिल्स पे है। यस यस। हाउ मच यू विल चार्ज फॉर वन हेयर स्टाइल सर? I charge 1 lakh rupees, 1 lakh rupees plus taxes, yeah. So 1 lakh 18,000. 1,18,000. So minimum cost is 1,18,000. If you're getting it done from me personally. But if you're getting it done from my team, then it's not expensive. Then it starts from 1,000 rupees. Below 1,000. Then it's not expensive. It starts from 1,200, so it's not expensive. But when you're getting it done from me, it's expensive. That's it. It's not. I don't know whether it's expensive or not expensive, but this is what I charge. Okay. Still, I have one doubt, sir. Can I ask you with your permission? Yes. Yes. बाहर तो बहुत सारे सलून्स रहते हैं। पर्सनली आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस। मैं हेयर कट के जाती ना, जब एक 1,000, 1,500, 2,000 चार्ज करते, फर्स्ट डे स्टाइलिश दिखता, नेक्स्ट डे से नॉर्मली होता है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं दिखते। इसलिए कि आपका हेयरड्रेसर को पहली बात तो आपको गाइड करना चाहिए कैसे मेंटेन करने का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में जाके भी हेयर स्टाइल कैसे अच्छा दिख रहा है, तो हेयर कट अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो वही डिफरेंस है व्हेन आई डू हेयर कट्स फॉर पीपल, कि देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस, देयर इज अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज अ ड्रास्टिक मेकओवर। सो वो बहुत जरूरी है होना। तो वही वही डिफरेंस है। तो इसलिए लोग इतना पे भी करता है, इसलिए लोग इतना आता भी है, क्योंकि उनको वो रिजल्ट मिलता है। ओके ओके। एंड आप करने से हेयर स्टाइल में और दूसरा लोग घर में करते ना वो हेयर स्टाइल में क्या फर्क क्या रहता सर? नहीं, कुछ फर्क बोल नहीं सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता है, वो तो क्लाइंट ही बोल सकता है। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, इवन दे मस्ट बी ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट। की क्योंकि आप आपका इंस्टाग्राम में फोटोज आप अपलोड किया ना, मैं कंपेयर करके देखी, डिफरेंस बहुत दिख रहा है, डिफरेंस बहुत है। तो वही है कि हाँ, तो वही है कि आई ट्राई टू वर्क really deep, when I'm doing any makeover, I work really deep. So वो एक फर्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, लोग अलग दिखे। आई वर्क टुवर्ड्स दैट। फीमेल को भी करते हैं हेयर स्टाइल? दोनों का, मेल फीमेल दोनों का, बट माय फोटे इन फिल्म्स, आई एंजॉय डूइंग मेल हेयर कट्स because that's very difficult. So female hairdressing is not very difficult according to me, but it's still it's an art. But male haircuts बहुत difficult होता है करना। फीमेल के कुछ सेलिब्रिटी के आप वर्क किया? बहुत सारा मनीषा कोइराला, कटरीना कैफ, बहुत लोग के लिए किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। परिणीति चोपड़ा, बहुत लोग का किया है। बट मैं ज्यादा एंजॉय मेल में करता हूँ। मेल को किए तो आप परफेक्ट रहते? आई एंजॉय पर्सनली। मेल को एंड फीमेल को एक ही प्राइस रहता है और कुछ फर्क रहता है सर हेयर स्टाइल के लिए? व्हेन आई डू इट्स द सेम प्राइस फॉर बोथ ऑफ देम। लाख? अच्छा, ओके सर। प्लीज टेल मी व्हेन यू कम टू हैदराबाद। मैं 1 लाख खर्च नहीं कर सकती। नहीं, आप मत करो, लेकिन आपको मैं गाइड करेगा और आपका हेयर करेगा। Yes, come, please come. Happy to see you, sir. May definitely I'll come to your salon and I'll meet you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Bye, sir. Thank you, sir.